Good morning students, I welcome you all in the next video of fractions and decimal of class 7. In our previous video, we recall the concept of fraction, what is fraction. After that, we learned how to add the fraction, how to subtract the fraction, and what is equivalent fraction. These topics were discussed in previous video. Now today we shall discuss how to check whether which fraction is greater or which is less. Like this is the question from exercise 2.1, and the question is arrange the following in descending order. Arrange these fraction in descending order. So we have to determine which fraction is biggest and which is smallest. That's how you can arrange them in descending order from greatest to smallest, from greater to smaller. Now look at these fractions: 2 by 9, 2 by 3 and 8 by 21. You can see that we have to determine this fraction which is greater or smaller. Before that, look at this picture. Here is a cake or a pizza in round shape, another pizza. Okay, both the pizza are same in size. This equals to this. ये जितना बड़ा है उतना बड़ा पिज्जा ये भी है. मैंने इस पिज्जा के 3 इक्वल पार्ट किए, and you all know one part of this pizza will be 1 by 3, and I made 2 equal part of this pizza, and you all know that this part will be 1 by 2. The pizzas were in the same shape. जितना बड़ा ये है उतना बड़ा पिज्जा ये है. पार्ट के इक्वल 1 by 3, this is 1 by 3, this is 1 by 3, और इसका मैंने 2 इक्वल पार्ट किए. आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा शेयर बड़ा है? This 1 by 2 or 1 by 3, which is smaller and which is bigger? Yes, you can see from the picture that this is bigger because these two pizzas were in same sizes, and we made 3 pieces out of this one pizza, and I made 2 equal pieces out of this pizza. So this half is greater than this. Here you can determine easily. But in this case, you need not to draw the pictures every time. आपको हर वक्त पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है. What you have to do? Just as in addition and subtraction, try to make the denominator same. क्या करिए? जैसे हमने एडिशन में सब्ट्रैक्शन में किया था कि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम करेंगे. And how to make the denominator same? How to make the denominator same? By taking the LCM. As we are discussing that, we have to make their LCM same. Why? Because we can add and subtract, or we can compare the like fractions. How many compare the like fractions? What is like fractions? Like fractions. Like fractions are those fractions which have equal denominator, and unlike is opposite of like. Do not have equal denominator. Example of like fraction: 7 by 8, 4 by 8, 1 by 8, 3 by 8. All these fractions are having same denominator, equal denominator. एक जैसा डिनोमिनेटर सबका है. Unlike 1 by 2, 3 by 9, 4 by 7, 11 by 13, and so on. You can see that these fractions are not having equal or same denominator. That's why these are unlike fractions. कहने का मतलब क्या है कि अगर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शंस है, उनको हम इजीली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं. लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है तो उन्हें हमें कंपेयर करने के लिए या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनको लाइक बनाना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग अ सर्टेन नंबर और बाय टेकिंग द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर एज वी डिड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नाउ अगेन कम बैक टू आवर क्वेश्चन. सो लाइक एंड अनलाइक. I hope it is clear to you all. You can see these fractions are not like fractions. Why? Because the fractions are not having same denominator. So we have to make or find the LCM of these numbers.
since the fractions are not like fractions. So LCM, to find LCM of 9, 3 and 21. You can do it orally also. अगर आपको orally आता है आप कर सकते हैं, नहीं आता तो इस तरह से आपने ट्रेडिशनल वे निकालने का अपने क्लास 6 में सीखा भी होगा इस तरह से. So 9, 3 and 21. So we will put some prime numbers here. सबसे पहले हम 2 को लेते हैं, लेकिन 2 से कोई भी divisible नहीं है. Then we will try with 3. 3 3s are 9, 3 1s are 3 and 3 7s are 21. Again we will try with 3 because 3 is here. So 3 and 3 1s are 3. ये 1 as it is यहाँ आ जाएगा and 7. Now this one becomes 1. Now take this number 7. 7 can be divisible by 7 also. 1 1 and 7 1 is 7. So that's it. आपको पता है कि हमने इस तरह से एलसीएम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले 2 से करते हैं, कोशिश 3 से करते हैं, फिर हम सारे प्राइम नंबर्स लेते हैं बारी बारी से. हम पहले 2 लेते हैं, फिर हम 3 लेते हैं, फिर हम लोग 5 लेते हैं, फिर 7 लेते हैं, फिर 11 लेते हैं. उन सभी प्राइम नंबर्स को लेते हैं बिकॉज हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. तो ये 3 है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21. अगेन 3 दिया, 3 1 जा 3. ये 1 एज इट उधर जाएगा, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको किसी भी स्टेज में यहाँ 1 मिलता है तो उसे छोड़ देना चाहिए. अब 7, ये 7 एज की 7 3 से डिविजिबल नहीं है. अब दिस इज 1, यहाँ काम खत्म हो गया. अब 7 को हमें 1 बनाना है. कैसे बनेगा 1? 7 1 जा 7. So what is LCM? The product of these numbers 3 3 and 7. LCM is 3 into 3 into 7, that is 3 is 9 into 7, 63. So LCM is 63. Now the common denominator will be 63. Now we will take all the fractions 1 by 1. First of all, let us take 2 by 9. To make 2 by 9, हमें इसे 63 बनाना है. इस 9 को 63 बनाना है. कैसे बनाना है? After multiplying a certain number in denominator and numerator also. तो 9 को किससे मल्टीप्लाई किया 63 बन जाए? Yes, 7 से. 9 7s are 63. Okay. Now you all know अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना होगा. अगर ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शंस की वो चेंज हो जाएगी. ऊपर कितना बन जाएगा? 2 7 से 14. Now 2 by 9 and 14 by 60 are equivalent. कैसे हैं ये? इक्विवेलेंट. हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये और ये इक्विवेलेंट हैं. Why? अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वापस यही मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? 7 2 जा 14, 7 9 जा 63. So 2 and 9. तो ये और ये इक्वल हो गए. Now take this fraction 2 by 3. इसको भी हमें 63 बनाना है. डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें? तो इसको हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या बन जाएगा? 63. बिकॉज 21 बन जाएगा 21, 22 2 जा 42 and 21 3 जा 63. और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 21 2 जा 42 हो गया. नाउ 8 by 21. नाउ 21 63 बनाना है तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई? एज हियर 3 से यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा. ये हो जाएगा 8 3 जा 4. सो वी हैव कन्वर्टेड आवर unlike fraction into like fractions. अब ये सारे फ्रैक्शन कैसे हो गए? like. Why? The denominators are same here. 63 63 63. What does it mean? It means 14 out of 63. What does it mean? It means 42 out of 63. What does it mean? 24 out of 63. 63 में से 14, 63 में से 42, 63 में से 24. इसका मतलब क्या है? हमने किसी चीज के जो पूरी एक चीज थी होल पार्ट, उसके हमने 63 पार्ट बनाए. पार्ट ऑफ अ होल 63 पार्ट बनाए, उसमें से 14 ले लिए. अब उसी चीज के हमने 63 पार्ट बनाए फिर और 42 पार्ट ले लिए. उसी चीज के हमने 63 पार्ट बनाए फिर 24 पार्ट ले लिए. तो कौन सा पार्ट सबसे बड़ा? चीज एक ही है. 63 में से 42, 63 में से 14, 63 में से 24. तो कौन सा बड़ा होगा? इट्स वेरी इजी. दिस विल बी द बिगर. बिकॉज 63 में से 42 लेंगे
ज़्यादा आएगा, और 63 में से 24 लेंगे तो उससे कम आएगा, 63 में से 14 लेंगे तो और भी कम आएगा। ओके, सो वी कैन डिसाइड इजीली दैट विच फ्रैक्शन इज बिगेस्ट एंड विच इज स्मॉलेस्ट बिकॉज विथ द फ्रैक्शन विच इज हैविंग लार्जेस्ट न्यूमरेटर। अब जब सारे के सारे फ्रैक्शन लाइक हो गए हैं, ये भी 63 हो गया डिनोमिनेटर, ये भी 63 डिनोमिनेटर हो गया है, और इसका डिनोमिनेटर भी 63 हो गया है। जब डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो 42 इज हैविंग द लार्जेस्ट न्यूमरेटर, सो 42 अपॉन 63 इज बिगर। नाउ आफ्टर दैट 14 and 24 which is bigger, 24 is bigger, so 24 upon 63. After that 14 upon 63, the last 14 upon 63. So it is our descending order. दोबारा देखते हैं इसको, क्यों बड़ा हुआ ये? क्योंकि हमने एक ही चीज के 63 पार्ट किए, यहाँ भी 63 पार्ट किए, यहाँ भी 63 पार्ट किए, एक ही चीज के। अब 63 में से 42 ले लिए, दिस मीन्स 42 आउट ऑफ 63 कि 42 ले लिए, यहाँ पे कितने लिए? 24 लिए, ज्यादा कहाँ लिए? यहाँ ज्यादा लिए, तो ये बड़ा हो गया। उसके बाद ये, उसके बाद in a simple way, if we have to decide which is bigger or smaller, just look at the denominators. If the denominators are same, if all fractions are like fraction, तो देखिए किसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। अभी न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 42 इज बिगर, बिगेस्ट, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, उसके बाद 24, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। नाउ व्हाट इज दिस? दिस वाज इक्विवेलेंट टू दिस, सो 2/3, this means 2/3 because 42 upon 63 is equal to 2/3. This means 8/21 and this means 2/9. So this is our answer. We have to arrange these fractions which were unlike fractions in descending order. तो इन्हें हम descending order में लगा दिया. So that is how we can do this question. If we are having all fractions like fractions, so it is very easy, just check the numerator. If you are having unlike fractions, then first of all try to make the LCM same by taking their LCM, or denominator same by taking their LCM. Then compare the numerators. The fraction which has largest numerator will be bigger and which is having smaller numerator will be smaller. जिसका numerator बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। शर्त क्या होनी चाहिए? कि डिनोमिनेटर सबके सेम होने चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ इन एक्सरसाइज 2.2 वी हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस इन टू वेज, मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर इनटू फ्रैक्शन and multiplying a whole number into mixed fraction, and how to multiply fraction with fraction. So let's understand first of all a whole number into fraction. एक whole number में जब fraction में multiply करेंगे, for example हमको अगर ये multiply करना है, एक fraction है 1/2, इसमें whole number multiply करना है, तो क्या करेंगे? वैसे तो बहुत आसान है, क्या है तरीका? सिंपल सा रूल है, जो whole number है उसको numerator में multiply कर दीजिए, that's it, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों करना है इसको समझते हैं फिगर से। लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, 2 into 1/2 को लेते हैं। व्हाट इज 1/2? 1/2 मींस एक चीज के दो हिस्से कर दिए, एक चीज के हमने दो हिस्से कर दिए। तो व्हाट इज हाफ? दिस पार्ट शोज द हाफ, दिस इज हाफ। एंड 2 into 1/2 मींस 2 times 1/2, 2 times 1/2, am I right? 2 times 1/2 यानी 1/2 कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। So 2 halves. So what is 2 half? This is 1 half and this is another half. ये भी एक half ही तो है। So half plus half, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं half plus half। 2 times half मतलब 2 बार हाफ को हमने जोड़ दिया, तो 2 times हाफ हो गई। सो हाफ प्लस हाफ विल बिकम होल, तो क्या बन गया ये? 1। क्या बन गया? 1। तो कैसे हुआ ये 1? हम इसको सिंपली समझते हैं। अगर इस 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 2, तो 2/2 हो जाएगा। अगर इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया? 2 1 2।
तो ये हो गया 1 बिकॉज 2 यहाँ से बना है और यहाँ से बना है। सो 2 टाइम्स हाफ इट मीन्स हाफ एंड हाफ। अगर इसी को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसी नंबर को अगर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेम थिंग, सेम फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इट मीन्स 3 times 3 it means 3 times 1 by 2, 3 into 1 by 2, 3 times 1 by 2 it means 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2। और हम पता है एडिशन कैसे करना होता है, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ आ जाएगा 1 plus 1 plus 1 सारी जगह क्या बन गई 3 by 2। इसको समझना पिक्चर से तो क्या समझेंगे, ये एक हाफ है किसी पूरे होल का, ये एक हाफ है, एक हाफ प्लस अनदर हाफ, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितने हाफ हो गए 1 2 3 हाफ हो गए, 3 into 1 by 2 so it will be 3 by 2, that's it। So to multiply a whole number into fraction, just follow simple rule that multiply the whole number with the numerator। अगर हमें कोई भी 7 into 5 by 4 करना है तो बहुत सिंपल, एक 7 होल नंबर है, इसे मल्टीप्लाई करना है 5 by 4 फ्रैक्शन में, जस्ट मल्टीप्लाई द 7 and 5 इट विल बिकम 35 by 4, 7 5 are 35। अगर हमें 8 को 3 by 2 में मल्टीप्लाई करना है कैसे करेंगे, 8 is 24 by 2। आप उसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं चाहे तो ये बन जाएगा 2 12 24, 8 से 24, और यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, हम इसमें बाद में सीखेंगे। अभी हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे लेकिन अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, हम सीधे भी सीख रहे हैं कि अगर हमें एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है तो वी विल मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, दैट्स इट। नाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन विद फ्रैक्शन what we have to do, 3 by 4 into 7 by 2, for that we will take the product of numerator 3 into 7 and the product of denominator, that is 4 into 2, just multiply the numerator with numerator and denominator with denominator, no need to make the LCM to give ऐसे करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, just multiply numerator with numerator and denominator with denominator, that will become 7 से 21 4 हो जाएगा। Another example, 7 by 4 into 3 by 5, that is 7 3s are 21 and 4 5s are 20, that's it। So multiply a fraction into fraction, just multiply the numerator with numerator and denominator with denominator, n को n से d को d से, तो आपका आंसर आ जाएगा। Now if I have to multiply a whole number with mixed fraction, what is mixed fraction? Mixed fraction is a combination of a whole number, that is 3, and a proper fraction 1 by 2, इसको mixed fraction कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इस चीज को। अगर मिक्स फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले क्या करना है, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। हम जब मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है वो, यस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 2s are 6 plus 1 7 by 2। Now it's very easy to do, as we discussed, this is a fraction, this is a whole number, to multiply a whole number with fraction just multiply the numerator with the whole number, जो न्यूमरेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 7 49 and 2, that's it। क्या किया, इस मिक्स फ्रैक्शन को बनाया हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हम सबको सीखा है हमने कैसे कैसे कन्वर्ट करना है इसको, उसके बाद हमने 7 7 49/2 कर दिया, that's it, how to multiply a mixed fraction into fraction। अगर यहाँ पर ये होल नंबर की जगह फ्रैक्शन ही होता 7 by 3 होता तो भी हम ये करते कि इस पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग फ्रैक्शन बनाते, वो बनता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। Now next thing is fraction as an operator। Now what is this fraction as an operator? Sometimes we have a question like this, find half of 4, find half of 4। अभी एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। फाइंड हाफ ऑफ 4 या फाइंड 2 by 3 of
16 और 15. तो व्हाट इज दिस ऑफ? ऑफ माने क्या? कुछ अलग ही नहीं. दिस ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन. वी हैव टू मल्टीप्लाई हाफ एंड 4. So this will be 4 ones. 4 ones are 4 because as we discussed हमने क्या बताया अभी फ्रैक्शन को जब होल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाएगा और सिंपलीफाई करने पर क्या बन जाएगा 2. क्या बन जाएगा 2. 4 2 से 2 4 2 2 4. तो हाफ ऑफ 4 कितना होता है? 2 होता है. यस यू नो कि अगर हम हाफ ऑफ 4 माने 4 का आधा क्या होता है? 4 का आधा 2 होता है. निकाला हमने. नाउ व्हाट इज 2/3 of 15? 2/3 of 15 means 2/3 into 15. Off means this sign multiplication. Now do this. 30/3. It after simplifying it will become 10. So what is 2/3 of 15? That is 10. That is 10. हमने क्या किए? किसी एक चीज के में 15 पार्ट थे. 15 माना होल 15 है उसके 3 पार्ट किए. कितने पार्ट किए? 3. तो हर एक पार्ट कितने का बनेगा? पूरा का पूरा 15 है. सपोज दिस मीन्स 15. तो इसके 3 पार्ट करेंगे तो कितने के बनेंगे? 5 5 और 5. 5 5 5 क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट है. तो टोटल कितना हो गया? 15 15 हो गया. अब इसमें से 2 निकालने हैं बाहर. 2/3 means out of 3 2 parts. Take 2 parts. फिर 2 पार्ट ले लिए हमने तो कितना हो गया? 5 plus 5 कितना होगा? 10. वो निकाला हमने 10 में. That is 10. तो पिक्चर से समझ में आया. और how to do it numerically? That's it. 2/3 of 15 means 2/3 into. This of means into. This of means into. तो जहां पर भी ऑफ आएगा ऑपरेटर ऑफ आप क्या करेंगे? इसके लिए लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई द नंबर्स विद फ्रैक्शंस. कुछ भी हो आप कर सकते हैं. यहाँ पर हो सकता है कि 2/3 और 15/4 दिया हो, अनदर फ्रैक्शन दिया हो. कुछ नहीं करना, केवल ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करना, बाकी आपको आता है. सो दिस इज फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2. 8 क्वेश्चन. तो क्वेश्चन इससे जो पहले जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसान है, आप इन्हें खुद भी कर सकते हैं. अगर आपको कोई मुश्किल हो आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं. तो फिर भी नहीं आता you can ask me. Now look at this question. Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. 2/5 part of the water Vidya consumed. Pratap consumed the remaining water. जो पानी बच गया वो प्रताप ने पी लिया. Now the question is how much water did Vidya drink? We have asked the quantity of water that Vidya drink and what fraction of the total quantity of water did Pratap drink. और टोटल पानी जो था उसको कितना पार्ट फ्रैक्शन में बताना है कि जो प्रताप ने लिया. देखो 3 चीजें हैं. सबसे पहले क्या दिया हमको? टोटल कितना पानी था. उस बोतल में कितना पानी था? 5 लीटर पानी था. उस 5 लीटर का 2/5 पार्ट किसने पी लिया? विद्या ने पी लिया. बचा हुआ किसने पिया? प्रताप ने पिया. तो बताना है कि विद्या ने कितने लीटर पानी पिया. हाउ मच वाटर इन लीटर्स वी हैव टू फाइंड. इन पार्ट्स वी हैव गिवन. विद्या ने कितना पानी पिया पार्ट्स में? 2/5. बट बताना है हमको लीटर्स में. किस में बताना है? लीटर्स में. और प्रताप ने कितना पानी पिया उसको बताना है पार्ट्स में. कितने पार्ट में पिया. सो देयर आर 2 ways that we can solve this problem. Let's see the easier way first. Suppose this is the bottle. This was the water bottle. That is, इसमें यहाँ तक पानी भरा जाता है. This is the mark for 5 liter. This is for 4 liter. This is for 3 liter and 2 and 1. यहाँ तक इसमें 5 लीटर आता है. यहाँ तक 4, यहाँ तक 3, यहाँ तक 2, यहाँ तक 1. इट मीन्स अगर पानी यहाँ तक भरा है तो 1 लीटर पानी. यहाँ तक भरा है तो 2 लीटर पानी. यहाँ तक भरा है तो 3 लीटर, 4, 5. अब ये मान लेते हैं हम लोग कि हमने इस बॉटल के कितने पार्ट कर दिए? 1 2 3 4 5. कितने पार्ट कर दिए हमने इसके? 5 पार्ट कर दिए. और पांचों पार्ट कैसे हैं? इक्वल हैं. दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस आर इक्वल पार्ट्स. तो इस 5 लीटर की बोतल के हमने 5 पार्ट कर दिए.
और पांचों पार्ट कैसे इक्वल है। ना विद्या ने कितना पानी पिया है, विद्या ने पिया 2/5। अगर मैं इस बोतल के 5 हिस्से कर दिए तो उसमें से 2 हिस्से पानी, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिला के यहाँ तो 2 हिस्से हुए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो इतना पानी विद्या ने पी लिया। तो विद्या ने कितना पानी पिया, इतना पानी पी लिया, और उसके सामने कितना लिखा हुआ है 2 लीटर। इट मीन्स 5 में से 2 लीटर किसने पी लिया, विद्या ने पी लिया। तो बचा कितना, 1 2 3 लीटर बच गया। 3 लीटर बचा मतलब कितना पार्ट बचा, तो 5 में से 3 बचा तो 3/5। तो दिस 3/5 पार्ट किसने पिया, ये प्रताप ने पिया। और 2/5 किसने पिया, उसकी बहन ने पिया। क्या नाम उसकी बहन का, विद्या, विद्या ने पिया। तो विद्या ने पिया 2 लीटर, आंसर दिस पार्ट, और प्रताप ने पिया 3/5, 5 में से 3 लीटर। तो फ्रॉम पिक्चर इट इज वेरी क्लियर। नाउ हाउ टू फाइंड इट न्यूमेरिकली, इसको हम कैसे हम समझ सकते हैं। ड्रैंक होता है, नाउ विद्या ने कितना पानी पिया, 2/5 पार्ट पिया। 2/5 पार्ट, पोर्शन ऑफ होल 5 लीटर, 2/5 पार्ट ऑफ 5 लीटर। So quantity of water consumed by Divya is equal to 2/5 of 5 liters. 2/5 of 5 liters, बिकॉज उसने 2/5 पार्ट किया ऑफ 5 है, किसका 5 लीटर का। कितना बन जाएगा 2/5 into 5, and after simplifying it 5 2s are 10 upon 5 it will become 2 liter। कितना पानी पिया दिव्या ने, 2 लीटर पानी पिया। फ्रॉम फ्रैक्शन इट इज ऑलरेडी क्लियर दैट 2/5 मींस 2 आउट ऑफ 5 पार्ट्स। तो अगर 5 लीटर के 5 इक्वल पार्ट बनेंगे तो हर एक पार्ट कितने लीटर का बनेगा, 1 लीटर का बनेगा, जैसे हमने पिक्चर में बना के देखा। उसमें से 2 पार्ट लीटर ने पी लिए, तो 2 लीटर पानी पी लिए, बचा कितना 3 लीटर। सो द पार्ट दैट प्रताप कंज्यूम इज 3/5, बचा हुआ 3/5, 1 2 3 किसने पिया, प्रताप ने पिया। सो 3/5 लीटर वाटर consumed by Pratap. That's it. This is the question, answer of this question. So now for today that's all. After watching this video you can solve exercise 2.2. If you have any doubt you can ask me, you can ask in comment section of this video also. Thank you, that's all.